Okay. So in the previous turn, we have learned um, about about the functions. So this function is very important part of the JavaScript. And in the previous turn, we have learned about the functions, and you all performed one of the exercise on the functions also, where you have called a function and done some printing operation. Okay. Now, I'm giving you one task. Quickly write a function. Okay. Quickly write a function that will take the total marks as the parameter. Write down the question. All of you write down the question. I hope today everybody is carrying the copy and the pen. So write down the question. Write a JavaScript code. Write a JavaScript code in which you will declare and define a function called percentage, in which you will declare and define a function called percentage. First off, this function will take two parameters. This function will take two parameters, namely marks obtained and total marks. Marks obtained and total marks. Full stop. This function will print the percentage of marks obtained by the student. This function will print the percentage obtained by the student. Okay. So I hope the question is clear to everyone. In this question, what you need to do, you need to make a function. The name of the function will be percentage. This function will take two parameters. First one is the marks obtained and second one is the total marks. Okay. Thereafter, you need to calculate the percentage and print whatever percentage is obtained by the student. Okay. This is about the function, and outside the function, you need to call that function. Take any marks, whatever you want, any marks and the total marks, and on the basis of that one, write down this function. Okay. You will have 10 minutes time. Quickly write down the script, JavaScript for this one. If there is any doubt, any confusion, you can ask. Otherwise, you can take the help. I have opened the function section. Quickly write down the whole function within 10 minutes.
So is it done by everyone? Yes, Alok. Ma'am, 1 minute, please. Yes, Arun. यस मैम, बस हो गया मैम। Okay. Bhagat. Yes, ma'am, done. Praveen. लिख रहे हैं मैम। इतना आप लोग क्या लिख रहे हैं 10 मिनट से? इतना लंबा तो कोड ही नहीं है। रीड करिए क्या लिखा है कोड में, पढ़िए। मैम फंक्शन परसेंटेज हाँ, कॉमन ठीक। लेकर मार्क ऑब्टेन टोटल मार्क, फिर विंडो अलर्ट परसेंटेज, फिर वेरिएंस लिखे VAR परसेंटेज P, फिर परसेंटेज P मार्क ऑब्टेन टोटल मार्क, ऐसे लिखे मैम। कुछ गलत लग रहा है आपका, सही तो नहीं लग रहा। स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन शेयर करिए। 1 मिनट मैम। मैम हो गया, बट Okay. मैम रिजल्ट नहीं आ रहा है मैम। एग्जीक्यूट हो रहा है? नो मैम, गलती है कहीं। क्या हो रहा है? मैम गलत लग रहा है, कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो रहा मैम। अच्छा, इस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं। जिसने प्रीवियस टर्न का कोडिंग कर ली है, मस्टैंग वाली, कार और पेचेक वाली, उसमें कुछ, इसमें और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। बिल्कुल सेम कोड है वो। बस इसमें एक आपको परसेंटेज और कैलकुलेट करा देना, और कुछ भी काम नहीं है। भाई प्रवीण, मैम एक यस मैम एक कोड आपको है। वेरिएबल नेमिंग नहीं पता कैसे होती है? न्यू अपना कोड खोलो। वेरिएबल नेम आपको बताया, आपको पूरा कन्वेंशन पढ़ाया गया ना, वेरिएबल नेम कैसे लिखा जाता है। वेरिएबल नेम में क्या स्पेस आ सकता है? नो मैम। तो क्यों मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स के बीच में स्पेस आ रहा है? मतलब क्या कोड क्या लिखा है ये बताओ। प्रवीण, यस मैम। ये स्लैश क्यों लगा दिया है? मैम इस वही आप कह रहे स्पेस नहीं है। प्रवीण, कौन से क्लास की कौन सी कोडिंग आप कर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं? लाइन नंबर 1 देखो, कर्ली ब्रेसेस क्यों लगे हैं? पैरेंथेसिस गोल वाले लगते हैं।
कर्ली ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट दी जाती है। पैरामीटर लिस्ट में 2 पैरामीटर्स बोले गए थे, मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स। तो जब पैरामीटर लिस्ट में जब आप पैरामीटर्स के नेम लिखते हैं तो वो वेरिएबल नेम की तरह सेम कन्वेंशन फॉलो होता है, वो भी नहीं सही लिख रहे हो। लाइन नंबर 2 विंडो डॉट अलर्ट लिख रहे हो, वहां परसेंटेज में परसेंटेज लिखवा दे रहे हो, जबकि परसेंटेज कैलकुलेट कराना था। लाइन नंबर 4 में परसेंट लिख करके पी लिख रहे हो, परसेंट पी का मतलब क्या होता है? ये कोड कहीं बिल्कुल ही गलत है। चलिए नेक्स्ट, रुचि। मैम रन हो गया मेरा। ओके, यस मैम। डन। नो मैम। स्क्रीन शेयर करिए। वेट मैम। रुचि स्क्रीन शेयर करिए। रुचि, रुचि मैं ऑडिबल हूँ आपको? अगर नहीं तो आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। बताइए जरा, लाइन नंबर 2 में क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैम मुझे नहीं आ रहा था मैम। ये तो कोड बिल्कुल गलत लिख रही है, सेम वही मिस्टेक जो अभी प्रवीण को हम बता रहे थे वही आप भी कर रही हैं। लाइन नंबर 1 में मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स, वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं लगा सकते, अलाउड नहीं है। यही तो पढ़ा है ना हम लोग ने। वेरिएबल जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में केवल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं लगा सकते एंड कोई कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। लाइन नंबर 1 में आप स्पेस लगा दे रही हैं, ठीक है। लाइन नंबर 2 से कुछ आप विंडो डॉट अलर्ट यूज कर रही हैं, लेकिन उससे आप कुछ प्रिंट नहीं करा रही हैं। थर्ड लाइन से आप रिटर्न करा दे रही हैं फंक्शन का कंट्रोल, और फोर्थ लाइन में शायद परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने वेरिएबल भी नहीं डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, ये कोड नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शिवम आपका हो गया? शिवम यस मैम। एग्जीक्यूट हो गया कोड आपका? यस मैम। मैम परसेंटेज शो नहीं हो रहा, बस वो कर रहे हैं इस टाइम। तो फिर एग्जीक्यूट क्या हुआ? मैम परसेंटेज सेकंड पॉपअप में परसेंटेज नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर करिए। जी मैम। शुभम आपका हो गया? यस शुभम। नो मैम। आपका भी नहीं होगा। नहीं वेट करिए, अभी पहले शिवम कर रहे हैं। ओके, जिसकी भी स्क्रीन शेयर है आप रुक जाइए। शुभम आप रुक जाइए, आपकी स्क्रीन शेयर है। क्या कर रहे हो? कैसे? लाइन नंबर 1 में क्या कर रहे हो आप? फंक्शन डिफाइन किया है। हाँ करो, बताओ क्या किया है। पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया है आपने? लाइन नंबर 1 पे रहो। लाइन नंबर 1 पर पैरेंथेसिस में क्या किया है?
ब्रैकेट जो गोल वाले ब्रैकेट लगाए हैं उसके अंदर क्या लिखा है? मैम मार्क्स कितने और फिर टोटल मार्क्स परसेंटेज की ऑब्लिक कैसे लगा सकते हैं? फंक्शन में जो पैरामीटर लिस्ट होती है वो Divide कॉमा सेपरेटेड होती है ना? मैम ये डिवीजन के लिए डाला, डिवीजन ऑपरेटर। अरे वहां डिवीजन कैसे लगेगा? फंक्शन में जो पहली लाइन होती है उसमें पैरेंथेसिस में पैरामीटर लिस्ट होती है, यही तो पढ़ाया है फंक्शन में। तो वहां डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करने लगेंगे आप? मैम ये डिवीजन ऑपरेटर नोट्स में लिखा हुआ था, num1 डिवाइडेड बाय num2। आप प्रॉब्लम समझिए पहले क्या है। वो डिवीजन ऑपरेटर है वो पता है। आप जब फंक्शन लिखते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो बाकी लोग भी सुन लीजिए। जब आप फंक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन जो लिखा गया है, उसके बाद फंक्शन नेम लिखते हैं परसेंटेज जो सही लिखा है, उसके Yes, बाद में पैरेंथेसिस लगाते हैं वो भी सही लगा है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखते हैं? पैरामीटर लिस्ट, कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर लिस्ट, यही तो लिखते हैं। Yeah, वहां ma'am. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ी ना करते हैं। फिर आप जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू उसको असाइन होती है, वो चीज कर ही नहीं रहे हैं। मैम ये यहाँ पर सही है फिर। अब सही है यहाँ से, और फिर आप कॉल लाइन नंबर 6 पे गलत कर रहे हैं। मैम वेरिएबल रिजल्ट कॉल डिफाइन। कर रहे हैं जो परसेंटेज, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट फिर जाएगी 437 कॉमा 500। हो गया मैम। आ गया 87.4। ठीक, थैंक यू मैम। नेक्स्ट सुमित। मैम रन नहीं हुआ मैम, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मैम ये HTML वाला है और ये जावास्क्रिप्ट का। आप अपना HTML दिखाइए। ये कैसे लिख रहे हैं? SRC, ये कॉलिंग ही नहीं सही कर रहे हैं। लाइन नंबर 8। मैम इसमें क्या चेंज करना है? उसको चेक करिए, एकदम गलत कर रहे हैं उसको। स्क्रिप्ट का ये ऐसे SRC बीच में थोड़ी ना लगा देंगे, इसी टैग के साथ में उसका एट्रीब्यूट लगेगा ना ये। मींस यहाँ पे यस, उस जावास्क्रिप्ट भी नहीं लिखते हैं, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब अपना पुराना HTML खोल कर देखिए ना, उसमें आपने लिखा होगा पहले जब एग्जीक्यूट कराया है HTML। आपने कहीं अभी तक आउटसाइड स्क्रिप्ट ही नहीं कॉल करी है क्या? मैम किया है मैम, तभी तो पिछले 2-3 तो हुए थे मैम। तो उसका कोड कहाँ है? मैम जैसे ये वर्क कर रहा है। इसका कोड दिखाइए, HTML कोड दिखाइए। सब गलत है। लाइन नंबर 6, उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग हटाइए, वहां पर SRC वहां पर लेकर जाइए। ओके मैम। और एंड में जाकर के क्लोजिंग लगाइए। अपना जो भी फाइल आपकी जहाँ है उसको वैसे ही कॉल कराइए। अपना कोड दिखा दीजिए जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, कोड ठीक है, कोड ओवरऑल ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा सारी सही लिखी है कि नहीं आपने। बाकी कोड सही है, और अपना ये जावा ये HTML ठीक करेंगे, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट, सुनील।
Yes, ma'am. 1 minute. Done? No, ma'am. 1 minute. मैम रिजल्ट नहीं आ रहा। कैसे आएगा? वेरिएबल के बीच में तब से बता रहे हैं स्पेस नहीं रखिए, आप वही काम खराब भी कर रहे हैं। लाइन नंबर 3। Yes, ma'am. Okay. Next, Jayashree. Done, ma'am. Okay. Yes. Shivam. Sherry. जावास्क्रिप्ट दिखाइए। ये क्या किया है? ये लाइन नंबर 7 to 14 क्यों लिखी है? 15 क्यों लिखी हुई है? वेरिएबल। आपको ये कहाँ करने को बोला है? स्ट्रिंग ऐड करने को बोली है क्या? परसेंटेज कैलकुलेट कराने को बोला गया है ना? मैम फंक्शन का एक्चुअली थोड़ा क्लियर नहीं है। शिवम, आपको ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से, थोड़ा तेज बोलिए। मैम फंक्शन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है मैम, कैसे? आपसे पूछ रहे हैं लाइन नंबर 7 to 15 क्यों लिखी है? शिवम, यस मैम। लाइन नंबर 7 to 15 क्यों लिखा हुआ है? शिवम, क्वेश्चन रिपीट करें क्या? लाइन नंबर 7 to 15 क्यों लिखा है आपने? मैम फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैम। शिवम, आपसे सजेशन है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको क्या करने को बोला गया है। ठीक है, ये क्योंकि आपने पता नहीं क्या इसमें बीच में स्ट्रिंग एडिशन क्यों लगा दिया, ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा गया है। आपको इसमें केवल परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला गया था। बाकी लाइन नंबर 16 में आपने स्ट्रिंग की तरह पास किया है मार्क्स को, वो सही नहीं है। परसेंटेज कहीं आपने कैलकुलेट नहीं कराए हैं। मैम दोबारा करते हैं। आलोक, आपका हो गया? यस मैम। मैम मैं एक चीज पूछना था। यस। मैम स्क्रीन शो हो रही है क्या? हाँ। मैम जैसे मुझे ये डॉक्यूमेंट राइट यहाँ पे करना है, मतलब फंक्शन के बाहर करना है, तो उसके लिए मुझे फिर ये रिटर्न पी करना पड़ेगा, और नहीं फंक्शन के अंदर ही रखना है तो फिर ये पी रिटर्न पी नहीं कर सकते, मतलब नहीं करने की जरूरत केवल है। रिटर्न कर दीजिए। आप रिटर्न पी कर रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल कहीं रिसीव आप उस वैल्यू को कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपका कोई एरर नहीं आएगा रिटर्न पी लिखने से, लेकिन आपका कोई यूज नहीं है क्योंकि आप उस वैल्यू को कहीं यूज नहीं कर रहे। तो आप सिंपल
रिटर्न लगा दीजिए ठीक है मैम। और इसमें आपने कहीं अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट राइट वहां लगा दिया। ठीक मैम अगर इसी फंक्शन को वैल्यू मुझे दोबारा प्रिंट करवानी है तो फिर यहाँ पे पी लगाना पड़ेगा, रिटर्न पी। आउटसाइड द फंक्शन अगर आप उस वैल्यू को एक्सेस हेलो हेलो क्या हो गया? Wait, Alok. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so there is some electricity issue. So yes, so yes, आलोक आप जो पूछ रहे थे कि अगर आपको बाहर प्रिंट कराना है, आउटसाइड द फंक्शन प्रिंट कराना है कुछ, तो आपको वहां पर रिटर्न कराना पड़ेगा वैल्यू और तभी आप एक्सेस कर पाएंगे उस वैल्यू को। अदरवाइज अगर आपको फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा देना है तो आप सिंपल रिटर्न लिख करके इसको कैरी आउट करिए। ओके मैम। मैम यस मैम मेरा भी कोड देख लीजिए मैम, गलत हो तो मैम बता दीजिए। ओके मैम लाइन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 500 क्यों कर रहे हैं? मैम टोटल मार्क्स मैम 500 है इसलिए मैम। आप जब वैल्यू आप फिक्स नहीं कर सकते ना, आप जब उसमें पैरामीटर लिस्ट में आप उस वैल्यू को मांग रहे हैं तो आप कैसे 500 पे फिक्स करा रहे हैं? ओके मैम। तो आप वहां से 500 की बजाय टोटल मार्क्स लिखिए। ओके मैम। मैम अनसर्कल है। अंशय उसको अभी आपका स्क्रीन अपडेट नहीं हो रहा, आप उसको बस 500 की जगह टोटल मार्क्स लिख दीजिए, बाकी तो ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। Just 1-2 मिनट्स का वेट करें क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा करके आई है तो अभी नेट स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। Okay. So am I audible? Yes, ma'am. So for those two students who are not able to carry out this exercise, see the solution. So when you need to write down the function, the first keyword is function. Okay, the first keyword that you need to use is function. Thereafter, you need to write down the function name. In this case, it is percentage. Inside the parenthesis, two parameters are required. So parameters name are
total marks and marks obtained. This one is the parameter list that I have written down. Marks obtained and total marks. Whenever you are writing the name of the parameters, make sure that you follow the convention, follow the rules that is given for the variable. Whatever rules are given for the variable, according to that one only write down the name of the variables over here. What are the rules? There cannot be any space between the variable. There cannot be any special character other than underscore. It will start either with alphabet or with underscore, but not by digit. It is case sensitive and use of keyword should be avoided. So these are the rules for the variable list. So जो आपको rules बताए गए variable के सेम वही रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैरामीटर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप जितने पैरामीटर के नाम लिखेंगे, यानी कि जितने वेरिएबल के नाम लिखेंगे, उतने ही आपको आगे जाकर के उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना। अब पैरेंथेसिस के बाद में अगला कर्ली ब्रेसेस लगता है। फिर आप लिखें एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है? var कीवर्ड से एक वेरिएबल हमने परसेंटेज हमको कैलकुलेट कराना है, तो हमने परसेंटेज के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और स्टेटमेंट का एंड कैसे होता है? सेमीकोलन से, तो हमने उससे कर दिया। देन इस परसेंटेज की वैल्यू हम कैलकुलेट कराते हैं। दिस इक्वल टू यहाँ पर जो हमने लिखा है इसके अकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगा करके इसको एंड करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट हमेशा फंक्शन का रिटर्न होता है। रिटर्न क्यों लगाया जाता है? जिससे कि कंट्रोल वापस से फंक्शन के बाहर आ जाए। यहाँ पर अगर आपको कोई वैल्यू पास करानी है तो वैल्यू यहाँ पर पास करा दीजिए। उसके बाद में इस पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करिए। जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन अपने आप से एग्जीक्यूट कभी नहीं होता, उसको हमें कॉल कराना पड़ता है। कॉल कैसे कराते हैं? कॉल कराने के लिए आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिखेंगे? जितने पैरामीटर यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 जितने पैरामीटर लिखे हुए हैं उतने ही पैरामीटर्स के वैल्यू आपको यहाँ से पास करानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मार्क्स ऑब्टेन हमारा आ गया 450, टोटल मार्क्स सपोज 600। ठीक है, अगर यहाँ पर और भी कोई तीसरा वेरिएबल यहाँ पर अगर सपोज हमने कोई तीसरी चीज लगा दी होती, ठीक है, नेम, तब क्या करते? सपोज हमने किसी का नाम भी साथ में भेजना है, तो हम यहाँ क्या करते? यहाँ पर इस तरीके से ये सारी वैल्यूज को हम पास कराते हैं। यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये यहाँ पर हम लिस्ट में क्या क्या लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पास होती हैं। अब यहाँ पर 450 आप
Okay, so there was some internet issue. Variable percentage, then use the formula of percentage calculation. Marks obtained divided by total marks multiplied by 100, and I am returning percentage over here. Okay. So I will take a variable. Ma'am, screen is not visible. It is not visible. Yes, ma'am. Okay. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I'm writing down. I got the whatever percentage is obtained plus in my examination. And see the output. I have got 75% in my examination. ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें पैरामीटर्स की वैल्यू पास कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल का जो नेम कन्वेंशन है वही नेम कन्वेंशन पैरामीटर्स का जब आप लिस्ट लिखते हैं उसको फॉलो करते हैं। फंक्शन को जब कॉल कराया जाता है तो उतने ही वैल्यूज पास कराए जाते हैं जितने पैरामीटर लिस्ट में वेरिएबल्स होते हैं। तो ये फंक्शन के बारे में हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट कर रहे हैं जो आज का हमको। हाँ मैम। यस मैम 7th और 8th लाइन मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। 8th लाइन तो है ही नहीं इसमें, केवल 7th लाइन है। मैम 6th and 7th मैम, सॉरी। क्या दिक्कत है 6th में, बताइए क्या दिक्कत है। मैम वेरिएबल के बाद मैम परसेंटेज 1 क्यों लगाया मैम आपने? वेरिएबल को कोई वैल्यू लेंगे ना, वेरिएबल किसी वेरिएबल में वैल्यू पास होगी ना। परसेंटेज फंक्शन को जब आप कॉल कराएंगे तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हम कहीं तो स्टोर करेंगे ना। अगर स्टोर करना है तो ऐसे स्टोर कर लीजिए, स्टोर नहीं करना चाहते तो इसको कहीं जैसे इसको ऐसा कर दीजिए, ऐसे भी आ जाएगा। मैम दोबारा वेरिएबल डिफाइन कराया आपने। वेरिएबल तो आपको करना ही पड़ेगा डिफाइन। अगर आप फंक्शन से रिटर्न होने वाली वैल्यू को कहीं रखना चाहते हैं तो रखने के लिए तो कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तभी उसमें वो वैल्यू रख पाएंगे। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो जाएगी कहाँ, तो उसको रखने के लिए कोई वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा। इस कारण से ये PER1 वेरिएबल रखा है, जिससे कि हम परसेंटेज से रिटर्न होने वाला जब फंक्शन कॉल होगा तो कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ पे लाइन नंबर 4 पर, उस रिटर्न वैल्यू को हमें कहीं रखना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा। इस कारण से वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, लाइन नंबर 7 में क्या दिक्कत है? नहीं मैम वही कंफ्यूजन था कि वो PER1 फिर वहां नीचे लिखा है। हो गया मैम क्लियर। चलिए, किसी को कोई और कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। प्रवीण, Yes, ma'am. क्लियर हुआ कुछ आपको? Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए, रुचि आपको? Yes, ma'am. अब चल जाएगा आपका कोड, एग्जीक्यूट हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके देन। नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है? बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशन, अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन सर्टेन सेट ऑफ टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड, if condition is false then another set of tasks will get executed. Okay, like suppose if the percentage is more than 60 then first division, other than if it is less than 60% then it is not first division. Similarly, suppose whether a student got passed or failed, then
Suppose it is 30. So is the total marks, or yeah, if marks is more than 30, then the student is passed. If it is less than 30, then the student is failed. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में मार्क्स लेकर के हम जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं वो डिपेंड करता है मार्क्स पर, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है whether the marks is more than 30 or not. If the marks is more than 30, then the student get passed. If the marks is not greater than 30, if it is less than 30, then the student is failed. Means whatever the statement is getting printed on the screen, it depends upon a condition. Based upon that condition, the task will be performed. For this purpose, we have the conditional statement. Whether the condition is true or not, there will be different set of tasks, the different set of statements that will get executed according to that one. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशन में कुछ रखते हैं और कंडीशन अगर सही निकली, ट्रू रही, उसका इवैल्यूएशन होता है. इवैल्यूएशन पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. अगर इवैल्यूएशन के बाद में कंडीशन फॉल्स आती है तो अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं. इस तरीके के स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है और इसके लिए हमारे पास में दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं. पहला है इफ एल्स और दूसरा है स्विच. ज्यादातर इफ एल्स को यूज किया जाता है, स्विच कंपैरेटिवली कम होता है. अगर एक सिंगल वेरिएबल बेस्ड हमें कंपैरिजन करना होता है तब हम स्विच को यूज करते हैं. स्विच पे बाद में आएंगे, पहले इफ एल्स को हम लोग देखेंगे. इफ एल्स डे टू डे लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं, है ना, कि इफ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 30 मार्क्स देन ही हैज पास्ड, अदरवाइज ही हैज फेल्ड. Otherwise means else he will get failed, he or she will get failed. तो if अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो लिखा है वो, अगर नहीं तो else में जो लिखा है वो. समझ में आ गया? दोनों चीजें नहीं एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा. इसीलिए ऐसा नहीं है कि if में भी जो हमने लिखा है और else में भी जो लिखा है सब एग्जीक्यूट होगा. कोई एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो ये यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट से आता है. इसको हम लोग रीड करते हैं और सीखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं. सो अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट यू कैन यूज टू एग्जीक्यूट अ बिट ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ कंडीशन or to do something else if that condition is not met. You can think of a conditional statement as being a little like cause and effect. A conditional statement can be quite useful. Rather than executing every single line of code in the script, we would have certain section of the code or the script only be executed when a particular condition is met. We will study two types of conditional statement blocks used in JavaScript. First one is the if-else statement block and second one is the switch statement block. Using if-else statement block, you begin with if-else statement with the JavaScript keyword if is the keyword, followed by a comparison in parentheses. A comparison will return a value of true or false. If the comparison returns true, the browser can go on to the next line. If it returns false, the browser begins looking for the else keyword or the first line of the script after the block following the if line is completed. Like if board double equal to 3 means if we will check whether the value of boards is equal to 3 or not. We will compare the variable boards value with the 3. So if the condition is true, then the JavaScript written after that one will get executed. Otherwise, there will be an else block and whatever written over there will get executed. Okay. So if the comparison of both returns true, the code we place inside within the bracket will be executed. If it returns false, the code inside the brackets is ignored and the line of the code after the closing curly bracket is executed. If we wish to use an else block to execute a certain bit of code, when the comparison returns false, we place the else keyword on the next line and then follow it with its own set of curly brackets. Let's see.
how to do this coding. Like suppose I am getting percentage over here. Okay, I will not return. What I am going to do, I will say, like if a student's percentage is more than 75, I will say, congratulations, you have worked very well. If the percentage is less than 75, then I will print, it's okay, you need to work harder next time. Okay, so how I will print this message? Now this message is getting print on the basis of the percentage that is obtained by the student. So based upon this PER variable, the message will get displayed. So at your end, try to write down the code by yourself. Then I will write it down. In your copy, write down the code. As it is given over here, board. Try to write down the code by yourself. मैम एक बार कंडीशन बता दीजिए तो मैम थोड़ा नेट कट गया था मेरा. Based upon the percentage value, if the percentage is more than 75, then congratulations, you have worked very well. And if the value is less than 75, then message will be, it's okay for this time, work harder for the next examination, something like that. Okay, so based upon the percentage value, this message need to be printed. So how will you write down this thing? First, write down this statement, these statements in your copy. So the answer of this question is, I will write if. What is if? If is the keyword. Then after the if, I will place one parenthesis. Then I will write the condition. Percentage is greater than equal to 75. Parenthesis close, curly braces will be placed over here. I will write document dot write congratulations. So this is what I will do. I will place whatever I want to get executed by if the condition is true at line number 5, and if the condition is not true, else will be written, and again there will be curly braces. I will write okay. See. So this is what I have written. Let's see the output. Okay, congratulations, you have done a great work. And suppose if I reduce the marks,
Suppose from 450 to 400. Let's see what will be the output. It's okay, work harder for the next time. Okay, so this is how the condition statement is executed. Now, I am giving you another question. Write down in your copy. Write down the question in your copy. Question is, write down a JavaScript code write a JavaScript code in which you will take the amount paid by the customer as the parameter full stop. If the amount is more than 700, then 6% discount will be given. If the amount is more than 700, then 6% discount will be given. Otherwise 2% discount will be given. If the amount is more than 700, then 6% discount will be given. Otherwise, 2% discount will be given. Okay. First off, print the value. Print the value that need to be paid by the customer. Print the value that need to be paid by the customer. Okay. So क्वेश्चन क्लियर होगा सबको? इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें कि आपको कस्टमर ने कितने अमाउंट का शॉपिंग किया है वो वैल्यू लेना है. टोटल अमाउंट कितना उसका बना है उसकी वैल्यू लेनी है. अगर वो वैल्यू 700 से ज्यादा है तो 6% का डिस्काउंट लगेगा. अगर वो वैल्यू लेस देन 700 है तो 2% का डिस्काउंट लगेगा. लास्ट में बोला गया है कि कस्टमर को कितना पेमेंट करना है, ये वैल्यू आपको प्रिंट करानी है स्क्रीन पर. जल्दी से इसको एग्जीक्यूट कराइए. ये बिल्कुल पहला वाला जो आपको टास्क दिया गया था फंक्शन, और जो अभी आपको कंडीशन पढ़ाया गया है, इन दोनों को मिला करके ये क्वेश्चन आपको लिखना है. इसका कोड जो है आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है. इसको जल्दी से लिखिए.
आलोक, यस मैम। हो गया आपका? नहीं मैम अभी। ओके। अरुण, मैम बस हो गया मैम थोड़ा। ओके। भगत, Yes, ma'am, done. प्रवीण, नो मैम, देख रहे हैं।
ओके चलिए, अब सबका हो गया। रुचि, मैम प्लीज शो नो द मैम। मैम ओके, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैम कोड दिखा दीजिए मैम, पूरा नहीं हुआ। ओके चलिए, नेक्स्ट शिवम। मैम ऑलमोस्ट हो गया मैम, बस। ओके, शुभम। मैम लिखा तो है पर पता नहीं चल रहा, कुछ एरर रन नहीं हो रहा। मैम स्क्रीन शेयर करूं? यस, स्क्रीन शेयर करिए। ओके मैम। पहली बात तो लाइन नंबर 2 में स्पेलिंग मिस्टेक है। वेरिएबल की स्पेलिंग हम नीचे MOUNT लिख रहे हैं, ऊपर कुछ और लिख रहे हैं। लाइन नंबर 2 देखिए, फिर लाइन नंबर 3 देखिए, फिर लाइन नंबर 4 देखिए। सब हर बार आपने अलग लिखा है। क्या मैम? लाइन नंबर 2, 3, 4 हर बार आपने वेरिएबल का नाम अलग लिख दिया है। AMOUNT ना। डिक्लेयर देखो क्या कर रहे हो लाइन नंबर 2 में। सेमीकोलन सेमी कॉमा लगाइए लाइन नंबर 2। फिर आप लाइन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं? मैम कितने अमाउंट पेड डिफाइन कर रहा हूँ वेरिएबल को। नहीं, लाइन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं? अच्छा ओके, वो वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं टोटल। ओके, इसका कोई फायदा नहीं है। लाइन नंबर 2 और 3 का क्या यूज है? मैम क्योंकि फंक्शन डिफाइन किया है तो उसको कोई वैल्यू तो चाहिए। वो वहां से पास हो रही है ना। आपका जो वेरिएबल आप यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट में लिख रहे हो, टोटल अमाउंट पेड, यहाँ तो वैल्यू रिसीव हो ही रही है ना, फिर उसको अमाउंट पे फिर से क्यों असाइन कर रहे हो? आप शायद समझ नहीं रहे हो शुभम, क्या करना है। आप इसलिए बार बार मिस्टेक करो। इस चीज को समझिए कि क्या कहा जा रहा है। जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो, लाइन नंबर 1 पर जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, फंक्शन डिक्लेयर एंड डिफाइन कर रहे हो, यस मैम। आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद में आपने फंक्शन को नेम दिया अमाउंट पेड, ठीक है। उसके बाद आप पैरेंथेसिस बना रहे हो, कोल वाले ब्रैकेट बना रहे हो। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिख रहे हो? एक पैरामीटर की लिस्ट लिखी जाती है। पैरामीटर एक समझ लो आप, एक वेरिएबल नेम आप वहां पर देते हो। उस फंक्शन को चलाने के लिए जो वेरिएबल जरूरी है, यूजर को उन वेरिएबल को वैल्यू देना ही देना है, उनकी लिस्ट ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। यस मैम। तो वहां पर ऑलरेडी आपने एक वेरिएबल ले लिया है जिसको हम लोग पैरामीटर, यहाँ पर सही शब्द उसका पैरामीटर लिस्ट कहलाती है। यस बट मैम। समझाने के लिए बोल रहे हैं कि वहां पर आप सपोज आपने टोटल अमाउंट पेड एक वेरिएबल आपने वहां पर ले लिया है, और जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो वहां पर जो भी आप वैल्यू दोगे, फंक्शन कॉल कैसे होता है? फंक्शन का नेम लिखते हैं, जैसे आपने लाइन नंबर 12 में किया है। यस मैम। फंक्शन का नेम लिखा और पैरेंथेसिस में उसको वैल्यू पास कराई। तो आपने 800 की वैल्यू ऑलरेडी एक वेरिएबल टोटल अमाउंट पेड को दे दी है तो ना? मैम यहाँ वेरिएबल के बाद टोटल अमाउंट पेड लिख के और ये लाइन हटा सकते हैं? नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैरामीटर लिस्ट में उसको ले लिया है। तो अब टोटल अमाउंट पेड को आपको डिक्लेयर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो लाइन मैम नंबर फिर 2, अमाउंट 4 को हटा ग्रेटर दीजिए। देन 100 कैसे होगा? लाइन नंबर 2 और 4 को हटाइए और टोटल अमाउंट पेड, इफ में जो कंडीशन लिख रहे हैं यस मैम। उसको इतना लंबा हटाइए, पेड केवल लिख दीजिए। टोटल अमाउंट पेड की जगह लाइन नंबर 1 में पेड केवल लिखिए। पेड एक्चुअली नहीं होता, पेबल होता है। चलो कोई नहीं, कर दो उसको यहाँ पर। हाँ, पेड, हाँ। अच्छा,
आपने फिर अमाउंट भी नहीं कैलकुलेट कराया यहाँ पर, आपने सिर्फ इतना लिख दिया। यहाँ पर आपको अमाउंट पेबल कैलकुलेट कराना, तभी आपने पूरा कोड भी नहीं लिखा है। आपने केवल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया कि 6% का डिस्काउंट देंगे इफ द वैल्यू इज मोर देन 700, इफ इट इज लेस देन 700 देन 2% डिस्काउंट विल बी गिवन। ठीक है, आपने यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं लिखा जिससे कि एक्चुअल में कस्टमर को कितना पेमेंट करना है वो निकल करके आए। वो पूरा पार्ट जो है वो के लिए missing है। अलग से एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। नहीं, कोई फंक्शन नहीं डिफाइन, यहाँ पर एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल, जैसे हमने कोड लिखा तो हमने वेरिएबल लिखा डिस्काउंट, ठीक है, और उस डिस्काउंट में अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है तब 6, अगर फॉल्स होता है तो वहां पर 2, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अमाउंट पेबल आपको कैलकुलेट कराना पड़ेगा। यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराइए, अब तो इतना चल जाएगा आपका। है ना, तो ये केवल इसमें प्रिंट हो जा रहा है 6% डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड, एक टेक्स्ट आ जाएगा उसका। चलिए, ओके शुभ। नेक्स्ट सुमित। मैम रन नहीं हो रहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ मैम। हम बस एक फाइल सेव कर लूँगा। मैम विजिबल है? यस, मैम ये फंक्शन हो रहा है। पहली बात तो आप वेरिएबल डिस्काउंट को डिक्लेयर नहीं करा रहे हैं। आप उसको लाइन नंबर 3 में जब डिक्लेयर करा रहे हैं तो वो तभी डिक्लेयर होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। जो अगर वो सपोज कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो वो तो लाइन नंबर 3 पर जाएगा ही नहीं। लाइन नंबर 2 पर कंडीशन चेकिंग होगी, फॉल्स हो गया, लाइन नंबर 3 पर वो गया ही नहीं, सीधे लाइन नंबर 5 पर जाएगा। तो या तो 2 बार डिफाइन करें, या इससे बेहतर है कि लाइन नंबर 2 पर आप वेरिएबल डिफाइन करें, ठीक है। देन अब मेरे ख्याल से चलना चाहिए, देखिए। नहीं चल रहा है मैम। मैम इसे भी देख लीजिए, ये जावास्क्रिप्ट कोड दिखाइए। मैम यहाँ पे पेड ही मल्टीप्लाई होगा ना मैम? नहीं, पेड तो आपने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया ना। Okay. Ma'am, then I have to create it like a value here. आप यहाँ नहीं, आप वहां पर लाइन नंबर 6 पे एंटर मारिए। ये लाइन नंबर 10 आपकी गलत है, लाइन नंबर 10 को वहां पर लेकर के जाइए ऊपर। फंक्शन के बाहर DIS और पेड का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो केवल फंक्शन के ब्लॉक तक उसका वैलिडिटी रहती है। फंक्शन के बाहर जब आप चले जाएंगे तो DIS का क्या मतलब है और PAID पेड का क्या मतलब है, कुछ नहीं रह जाता। रिटर्न करिए PAY। यहाँ एक मिनट, यहाँ पर पे इक्वल टू लाइन नंबर 9 में लिखिए where पे इक्वल टू अब एग्जीक्यूट करके देखिए।
एग्जीक्यूट कर रहा है अब ये। वैल्यू देख लीजिएगा, वैल्यू सही आ नहीं रही है आपकी। Yes, ma'am. आर्ट्स उसका फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है लाइन नंबर 6 में, बट अब ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। Yes, ma'am. Thank you. नेक्स्ट सुनील। मैम सुनील आपका एग्जीक्यूट हो गया है? नो मैम अभी कर रहे हैं, समझ शेयर नहीं करिए आया। स्क्रीन। सुनील स्क्रीन शेयर करिए। ओके ओके, ये स्क्रीन सुमित आप शेयर करिए पहले, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मैम एक बार फिर से समझिए। कोड कहाँ है आपका? मैम बस शुरू करना, समझ नहीं आ रहा। तो रहने दीजिए। ओके, जयश्री Finished, ma'am. डन, इज इट रनिंग? Yes, ma'am. Executed. ओके, आलोक यस मैम। हो गया आपका? हाँ मैम एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अरुण। यस मैम, कर रहा हूँ मैम। स्क्रीन शेयर करिए। अरुण, हाँ फंक्शन कॉल कराइए। कैसे रन करेगा? बिना फंक्शन कॉल किए कैसे रन करेगा? अरुण, अरुण आप अपने को अनम्यूट करिए। यस मैम। फंक्शन कॉल कराइए। कॉल। यस मैम। मैम नहीं समझ में आ रहा मैम। क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतनी देर से फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन कॉल कराते हैं ना? यस मैम तो लिखा था। तो फंक्शन कॉल कहाँ किया है? फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए फंक्शन को कॉल कराओगे ना, कि चलो फंक्शन एग्जीक्यूट करो। यस मैम। वो कहाँ लिखा है? हम लिखना था इफ वाले में और एल्स वाले में, मैम अभी नहीं लिखा। अरुण, अरुण अपना प्रीवियस कोड दिखाओ जो चला है परसेंटेज वाला। लाइन नंबर 6 पे क्या किया है आपने? मैम रिजल्ट को बुलाया मैम, परसेंटेज को। तो यही तो बोल रहे हैं ना, फंक्शन कॉल कराया है ना यहाँ पे। यस मैम। वही चीज करने को बोल रहे हैं। ये फंक्शन कॉल कराओ डिस्काउंट वाले में। वेरिएबल क्यों ले रहे हैं? ओके मैम। जब कोई वैल्यू ही नहीं रिटर्न करा रहे तो वेरिएबल क्यों लेंगे? अरे क्या कर रहे हो? फंक्शन कॉल करो, बंद करो इसको पूरा।
फंक्शन कॉल ही कराना नहीं आ रहा है आपको? फंक्शन का नाम लिखो। फंक्शन का नाम क्या है आपके? पे लिखो, पे लिखो। आगे क्या लिखेंगे? मैम अमाउंट पेड। हाँ, लिखो। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोग को किस भाषा में हम पढ़ाएं कि समझ में आ जाए। इतना इतना सारा समझाने के बाद भी अगर स्टूडेंट फंक्शन कॉल ही नहीं कर पा रहा है तो अब हम क्या पढ़ाएं? फंक्शन पेड लिख रहे हो, कितनी बार बताएं? फंक्शन का नाम लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस के अंदर जो आपका पैरामीटर है उसकी वैल्यू दो। मतलब पता नहीं, या तो हम टाइप करते हैं तो उसको देख करके टाइप कर दे, तो फिर वही काम गलती कर रहे हो आप। चलिए रहने दीजिए। नेक्स्ट, यस प्रवीण, अपना स्क्रीन शेयर करिए आप। Yes, ma'am. मैम रन नहीं हो रहा है, कोड लिखेंगे। ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया लाइन नंबर 1? जावास्क्रिप्ट कोड खोलिए। पहले तो जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग सही करिए। लाइन नंबर 6 GAVA WA लिखा है लाइन नंबर 6 पे। Yes, ma'am. Java Yes, ma'am. सेव करिए इसको। कंट्रोल एस करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, अब discount.js दिखाइए। लाइन नंबर 1 क्वेश्चन मार्क हटाइए। चल रहा है, चलिए गुड। जिनको अभी भी कोड नहीं हो पा रहा है जिनसे, उन लोग सोल्यूशन देख लीजिए। फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे पैरामीटर में, क्योंकि यूजर ने कितना अमाउंट का परचेज किया है वो टोटल अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद में वेरिएबल हमने लिया है कितना डिस्काउंट मिल रहा है एंड कितना अमाउंट पेबल होगा, कितना अमाउंट कस्टमर को पे करना होगा। कंडीशन यहाँ पर दी गई थी कि इफ दी टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज मोर देन 700 देन 7% डिस्काउंट, एल्स 2% डिस्काउंट, ये लिखा था, है ना? तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। इफ टोटल इज मोर देन 700 तो डिस्काउंट वेरिएबल की वैल्यू 7 हो जाएगी। अगर ये कंडीशन, इफ कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट की वैल्यू 2 पे सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट पेबल आप लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, जिसको जैसे लिखना है वो अपने हिसाब से लिख लें कि अमाउंट पेबल equal to total multiplied by 1 minus discount divided by 100. ठीक है, then document dot write we have got the discount of जितना भी आपका आया है and you need to pay rupees this much. उसके बाद में रिटर्न करके यहाँ पर फंक्शन को कॉल कराना होता है। फंक्शन को कॉल करना सीख लीजिए जिनको अभी भी नहीं आया है। फंक्शन कभी भी अपने आप से एग्जीक्यूट नहीं होता है,
फंक्शन को आपको कॉल कराना पड़ेगा, तब जाकर के वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आप फंक्शन नहीं कॉल करेंगे तो फंक्शन चलेगा ही नहीं। फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट कराना है, उसको कॉल कराना है, तो आप सबसे पहले फंक्शन नेम लिखते हैं, जो कि यहाँ पर लाइन नंबर 28 पर हमने लिखा है पे। देन पैरामीटर की जो लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू उसमें पास कराते हैं पैरामीटर में। तो यहाँ पर फंक्शन पे में हमें टोटल वैल्यू कितनी परचेज हुई है उसका अमाउंट भेजना है, तो हमने 800 लिखा। ध्यान रखिए यहाँ पर कॉल कराने के लिए वापस से आप नाम नहीं लिख देते हैं पे पैरेंथेसिस टोटल, नहीं, आपको पैरामीटर की जो वैल्यू देनी होती है वो आप कॉल कराते टाइम लिखते हैं। सो पे 800 यहाँ पर हमने पास ऑन किया, सो 800 अमाउंट यहाँ पर जाएगा। Then you have got the 7% of discount and you need to pay rupees 744. Okay. इस तरीके से if else का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट, ब्लॉक नेस्टिंग। So if we nest something, we are basically putting one structure inside another structure of the same or a similar nature. With the if-else statement blocks, we are able to nest other if-else blocks within the first block after the comparison or within the second block after the else keyword. Okay. So nesting means we are simply going to put another if-else inside the if block or the else block. Okay. अगर कंडीशन आप और लगाते जा रहे हैं तो वो पैरेंथेसिस के अंदर बार बार लिस्ट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया है, इफ हैव कुकबुक यस। इफ अगेन एक और कंडीशन इफ के अंदर फिर से इफ ब्लॉक लग गया, इफ मीट लोफ रेसिपी इक्वल टू यस, window dot alert recipe found, otherwise have the book but no recipe, else window dot alert you need a cookbook। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेस्टेड मैनर में ये पूरा काम होता जाएगा। आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स रख सकते हैं, इसी तरीके से एल्स के अंदर भी इफ एल्स रख सकते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। So there is a nesting of if else inside the if as well as inside the else. Okay. Okay. So there is third nesting. If there are three if. See this code. Okay, so then in this manner we can make a nesting of the loops. So we will come to the switch statement later on. Okay, so perform this exercise. इस एक्सरसाइज को अपने एंड पर परफॉर्म करिए, जिसका होता जाए वो बताता जाए, चेक कराता जाए और मीटिंग लीव करता जाए। So create an HTML page and save it as exercise 9.html and
Script tags to point to an external JavaScript file named exercise9.js. Create an external JavaScript file and save it as exercise9.js. Use this file for steps 3 to 6. Create a variable named the sport and assign it the following string value golf. Create a variable named for my food and assign it to the following string value pizza. Based on the sport variable, create a block of code that will send an alert cool sport if the variable is equal to football. Otherwise, it will send an alert that says that sport might be cool. Based on the my food variable, create a block of code that will send an alert my favorite food if the variable is equal to pizza. Otherwise, it will send an alert that says that food sounds okay, I guess. Save the JavaScript file and the HTML file and view the HTML page in your browser. You will get an alert saying that sport might be cool. When you click OK, you should get another alert saying my favorite food. बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज. आपने जब इतनी एक्सरसाइज कर ली तो ये सिंपल इफ एल्स लगा करके ये काम होना है. इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करिए और जिसका होता जाए वो बताएं. एक्सरसाइज में कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. मैम वो एक्सरसाइज स्क्रीन शो कर दीजिए. एक्सरसाइज जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस रखी हुई है इसमें. एक्सरसाइज नंबर 9 देखिए, अदरवाइज मैं चैट में आप लोग को शेयर कर दे रही हूँ. यस मैम, मिल गया. Exercise number 9, JavaScript exercises. Ma'am, done. Okay, share your screen. Yes, ma'am. Okay.
ब्राउज़र पे एक मिनट वेट करिए इसमें। ठीक है, ओके मैडम, आप मीटिंग लीड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल।